Hello, students. Good morning, all of you. Yesterday, we had started the chapter hydrogen, and we had studied about the position of hydrogen in periodic table, its resemblance with the alkali metals as well as differences, and the resemblance with halogens as well as differences. Now we are coming to hydrides. What are hydrides? Hydrides are you can say, the compounds of hydrogen. They are the compounds of hydrogen with other elements. With other elements. These elements can be metals, non-metals. So different depending upon the kind of element hydrogen combines, we have got three kinds of hydrides. Number one is ionic hydride, number two is covalent hydrides, and number three is your metallic hydrides. सबसे पहले हम आए ionic hydrides. Ionic hydrides को हम salt like hydride भी कहते हैं. They are salt like hydrides. Salt like hydrides हम क्यों कहते हैं? Because their properties are just like salts. Means salts are ionic compounds. They have got cations and anions. They have got the physical properties of salts are ionic. Being ionic compound, the physical properties are like that. They have got very high melting point, boiling point. They are hard, crystalline solids. तो ये जो ionic hydrides है, ये भी तुम्हारे salt like properties हैं इनकी, जो properties ionic compounds की होती हैं. They are examples हैं जैसे your lithium hydride, sodium hydride, calcium hydride, strontium hydride, etc. तो ये सारे hydrides जो हैं, they are all crystalline solids with high melting point, boiling point. They have got high density. High density क्यों होती है? ये इनकी high density, it is higher than the density of the metal from which they are formed. Reason is that the hydrides ion occupy the voids of metal atoms, and so the atoms come very closer, giving them higher density. They also conduct electricity in molten state, good conductor. जब कैल्शियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड के मोल्टन स्टेट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सबसे पहले तो ये आयंस में डिसोशिएट करते हैं, प्लस Ca2 प्लस 2H माइनस, और ये जो H माइनस है ये एनोड पर H माइनस इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करती है, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड केटायंस पे कैल्शियम आयन है, कैथोड पर कैल्शियम आयन है Ca2 प्लस आयन. इट विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड विल डिपॉजिट एज कैल्शियम. तो जब हम हाइड्राइड से, मोल्टन हाइड्राइड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड, नॉट एट कैथोड. फिर ये हाइड्राइड्स की एक और प्रॉपर्टी है, दैट दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये जब वाटर से हम रिएक्ट कराते हैं, NaH को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो इट रिएक्ट्स vigorously with water, forming NaOH and liberate hydrogen gas. तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. जैसे एक एग्जांपल है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, जब हम SiCl4 से को रिएक्ट करते हैं NaH से, तो SiCl4 को ये रिड्यूस कर देता है. इट फॉर्म्स SiH4 प्लस NaCl. तो ये हुआ आयनिक हाइड्राइड्स. देन कम्स कोवलेंट हाइड्राइड्स where the bond between the element and hydrogen atom is a covalent bond. Normally ये
एलिमेंट्स जो है जिनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स से, ये हाइड्रोजन जो है कंबाइन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये कोवलेंट हाइड्राइड्स जैसे ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स हुए आपके HCl HBr, ये भी तो हाइड्राइड्स है ना, HCl HBr HI। फिर ग्रुप 16 का हाइड्राइड H2O H2S, ग्रुप 15 के हाइड्राइड NH3, ये सब कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। PH3 ये है, CH4 ग्रुप 14 का हाइड्राइड है। तो कार्बन के तो हाइड्राइड्स बहुत सारे हैं, दे आर एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस, ये सारे हाइड्राइड्स ही तो हैं कार्बन के। तो ये सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स को भी हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, electron deficient hydrides means the central atom is having less than 8 electrons, like B2H6। एक्चुअली B2H6 के फॉर्म में BH3 रहता है, BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। AlH3, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वैसे ही दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का माने जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट है सेंट्रल एटम के पास। जैसे CH4 SiH4, ये सारे जो है ये सब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स है। वैसे ही फिर है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तीसरा कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स विच आर हैविंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, like NH3 is having NH3 PH3, they are having a lone pair of electron. H2S is having lone pair of electrons on sulfur. H2O is having lone pair of electron on oxygen. So these are electron rich hydrides. So ये categories हुई covalent hydrides की। covalent hydrides कोवलेंट होने की वजह से दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। फिर आ जाता है मेटालिक हाइड्राइड्स। थर्ड काइंड इज मेटालिक हाइड्राइड्स। metallic hydrides, these are the hydrides formed by transition metals of group 3, 4, 5, means D block elements जो है, D block elements ग्रुप 3, 4, 5 के जो हाइड्राइड्स हैं उनको कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स, तो मेटालिक हाइड्राइड्स जो है ये ग्रुप 3, 4, 5 के एलिमेंट्स बनाते हैं। 7, 8, 9 के एलिमेंट्स मेटालिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। अब मेटालिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दे आर जनरली ब्रिटल सॉलिड्स और powdered appearance, good conductor of electricity, and they have got high thermal conductivity also. सो ये चीज़ है मेटालिक हाइड्राइड्स। तो ये 3 तरह के हाइड्राइड्स हुए। एक और क्लासिफिकेशन है हाइड्राइड्स की जिसमें 2 कैटेगरीज आती हैं हाइड्राइड्स की। वन इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमर के रूप में रहते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। एंड अनदर कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। polymeric hydrides में they exist as polymers like BeH2 whole N, AlH3 whole N, SiH4 whole N, ये है polymeric hydrides। and complex hydrides में they form
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, lithium aluminium, lithium, it is a very common reducing agent, lithium aluminium hydride. Similarly, sodium borohydride is also there, NaBH4. ये कॉम्प्लेक्स हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोरॉन का कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों दे आर वेरी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये हाइड्राइड्स के बारे में हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर।